Okay students, today our topic is considering the value of sales letters. In the previous topic we have discussed that creating effective sales messages in written and online. But today we are going to discuss how we can write a sales letter. And what is the sales letter? We have already discussed it. We are concerned with the sales letter in strategy, organization and evidence. Basically sales letters are written by professionals. जो sales letters होते हैं वो usually these letters are written by specialists, by professionals. जो specialist या professionals होते हैं वो इन sales letters को लिखते हैं. Now the question is why we need to learn to write a sales letters. Why it is important that we should learn how to write a sales letters. ये क्यों ज़रूरी है कि हमें ये आना चाहिए कि हमने sales letters किस तरह से लिखने हैं. Why we need to learn to write a sales letters. So learning the technique of sales writing or sales letter writing will help you be more successful in your communication, and it will definitely help you out in any communication that requires persuasion and promotion. आपने अगर किसी चीज़ को अगर आपने किसी को persuade करना है, convince करना है, या आपका persuasion आपने writing लिखनी है या persuasion message है, if you want to persuade someone, then you should know this technique of writing a sales letters and as well as promotion. And if you are going to promote your product, so when you are going to promote your product, it means that you are going to change the mind of the customer or the reader or the receiver. So in order for better communication, in any communication, that purpose is persuasion and promotion. For this purpose you need to know how to write a sales letters or sales writing. यानी कि अगर आपने कभी भी कोई ऐसी कम्युनिकेशन करनी है जिसके लिए आपको परसुएशन या प्रमोशन की ज़रूरत है, तो उसके लिए यू नीड टू लर्न हाउ टू राइट अ सेल्स लेटर. तो आपको ये जो है वो सीखने की ज़रूरत है कि आपने सेल्स लेटर जो है वो किस तरह से लिखना है. और इन सेल्स राइटिंग योर प्राइमरी गोल इज़ to get someone to devote a few moments or few time of attention to it. उसमें आपका पर्पज़ ये होता है कि जब आप सेल्स राइटिंग लिखते हैं या सेल्स लेटर लिखते हैं, तो उसमें आपका बेसिक जो पर्पज़ है, जो आपका प्राइमरी गोल है, वो ये होता है कि यू वांट टू मोटिवेट समवन दैट दे आर एबल और they would surely spend the few moments or few time of their value time, और दे विल डिवोट अ फ्यू मिनट्स ऑफ अटेंशन टू योर मैसेज, के वो चंद मिनट जो है वो लगाकर आपके मैसेज को गो थ्रू करें, आपके मैसेज को पढ़ें, वो अपना कुछ टाइम जो है वो आपके मैसेज को रीड करने में जो है वो लगाएं. सो इट मीन्स दैट यू मे बी प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट. और अब ये अब वो मैसेज जो है किसी भी तरह के हो सकते हैं. यू मे बी प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट, यू मे बी प्रोवाइडिंग अ सर्विस और एन आइडिया और योर सेल्फ. सो इन ईच केस द मोस्ट इफेक्टिव मैसेज इज follows the AIDA strategy. We have already familiar with AIDA strategy. अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि what is AIDA strategy क्या है. So जब आप सेल्स राइटिंग लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले आपका प्राइमरी गोल क्या होता है. आपका मेन पर्पस और प्राइमरी गोल ये होता है कि यू वांट टू मेक समवन टू डिवोट अ फ्यू मोमेंट्स और देयर वैल्यू टाइम टू गिव अटेंशन ऑफ योर मैसेज एंड टू पे अटेंशन टू योर मैसेज. Secondly, maybe you are promoting yourself, you are promoting a product or you are promoting your services or an idea. ये एक वो कोई भी केस है तो उसमें अगर आप AIDA स्ट्रैटेजी को जो है वो फॉलो करते हैं तो यू कैन राइट एन इफेक्टिव मैसेज. अब व्हाट इज़ AIDA स्ट्रैटेजी? AIDA strategy stands for A means gain attention. First of all, you need to gain the attention of the reader. Second, you need to build an interest. I stands for interest, building interest. Second, desire. You need to elicit desire, means that you need to create a desire in our reader. And the fourth thing is that motivation for action. So AIDE means gain attention, build interest, elicit desire and motivation for action. सो नंबर वन इज़ दैट. अब हम इन तमाम पॉइंट्स को AIDA की टेक्निक को जो है फुली जो है वो डिस्कस करेंगे. नंबर वन इज़ दैट गेनिंग अटेंशन. गेटिंग अटेंशन इन सेल्स मैसेज, इट मीन्स दैट हाउ यू कैन गेट एन अटेंशन इन अ सेल्स मैसेज वाइल राइटिंग अ सेल्स मैसेज. हाउ कैन यू गेट एन अटेंशन ऑफ अ रीडर. आप अपने रीडर की जो है अटेंशन उस तरह उसको कैसे गेन कर सकते हैं. वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ अ सेल्स मैसेज इज़ इट्स ओपनिंग. जब आप सबसे जो सेल्स मैसेज और सेल्स राइटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो उसकी ओपनिंग होती है, उसका ओपनिंग पैराग्राफ होता है. दिस ओपनिंग शुड बी शॉर्ट, ऑनेस्ट, रेलिवेंट एंड स्टिमुलेटिंग, मोटिवेटिंग. ओपनिंग जो है वो प्रिसाइज होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए. और इसके साथ साथ जो है मोटिवेटेड होनी चाहिए, स्टिमुलेटिंग होनी चाहिए, मोटिवेशनल होनी चाहिए. ठीक है जी. मार्केटिंग प्रोज have found the eye-catching
typography. Typographical arrangements or productive message such as following can take the or can attract the attention of the reader, can hook the reader's attention. अब जो मार्केटिंग प्रोज है, अगर मार्केटिंग की बात की जाए तो उसमें उनका ख्याल ये है कि ऐसे बहुत सी जो है टाइपोग्राफिकल अरेंजमेंट करके जो है यू कैन अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर, यू कैन कैच द रीडर्स अटेंशन. वो कौन सी जो है टाइपोग्राफिकल अरेंजमेंट हो सकती हैं? नंबर 1, यू कैन ऑफर समथिंग, आप कोई ऑफर कर सकते हैं, प्रॉमिस कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, कोटेशन और प्रोवर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स बता सकते हैं, प्रोडक्ट के क्या फ़ीचर्स हैं और वो कितने बेनिफिट्स हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, प्रोडक्ट व्हाट आर द प्रोडक्ट फीचर्स एंड इट्स बेनिफिट्स. एंड the seventh thing is that startling statements. You can give some startling statement in the beginning. You can also personalized action settings. So these are all the things. It means that you can give some offer in the beginning paragraph, क्योंकि अभी हमने बताया कि जो सेल्स राइटिंग होती है या सेल्स लेटर होता है उसकी ओपनिंग पैराग्राफ जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आप जो है उसकी ओपनिंग में यू कैन गिव सम ऑफर, यू कैन मेक सम प्रॉमिस, क्वेश्चंस, कोटेशन, यू कैन यूज़ कोटेशन एंड क्वेश्चंस, एंड यू कैन यूज़ सम प्रोवर्ब, यू कैन use facts and figures or product details and the features, all these things. Second thing is that building interest. अब आपने AIDA टेक्निक का जो सेकंड स्टेप है दैट इज़ टू बिल्ड एन इंटरेस्ट इन द रीडर. आपने रीडर में जो है वो इंटरेस्ट डेवलप करना है, इंटरेस्ट बिल्डअप करना है. जब उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो ऑब्वियसली आपकी बात को गौर से सुनेगा, आपकी प्रोडक्ट को या जो आपका जो भी मेन आइडिया है, मे बी यू आर सेलिंग योर आइडिया, मे बी यू आर सेलिंग योर सर्विसेज और योर प्रोडक्ट और प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट. तो जो भी आपका मैसेज है वो उसमें जो है वो जब उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो फिर ना सिर्फ वो आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे बल्कि इट विल डेफिनेटली हेल्प देम आउट टू फॉर देयर एक्शन. और जो हमारा थर्ड AIDE स्ट्रेटजी का स्टेप था इलिसिट डिज़ायर, एंड इट विल डेफिनेटली इन फर्दर स्टेप इट विल व्हेन दे विल ऑलरेडी हैव डेवलप्ड इंटरेस्ट फॉर योर प्रोडक्ट, देन it will definitely create a desire in them to purchase your product and to go for that. So building interest is very important. And building interest में दो चीज़ें हैं. To build a interest rationally और emotionally. You can appeal your reader rationally or you can appeal your reader emotionally. आप reader को emotionally भी appeal कर सकते हैं, उसको rationally भी appeal कर सकते हैं. Rationally means logically reason के साथ, और emotionally means कि हम सब हमारे यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा emotional हो जाते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, तो हम उनको इमोशनली अपील भी कर सकते हैं. तो इन द फेज ऑफ योर सेल्स मैसेज, ये दैट इज़ द स्टेज ऑफ योर सेल्स मैसेज इन विच यू शुड डिस्क्राइब क्लियरली द प्रोडक्ट और सर्विसेज. अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, सो यू नीड टू प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स, यू नीड टू प्रोवाइड, यू शुड डिस्क्राइब क्लियरली. आपने उस चीज़ को क्लियरली डिस्क्राइब करना है. वो प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट अपनी सर्विसेज प्रमोट कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, कोई आइडिया प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन आपने जो भी चीज़ आप प्रमोट कर रहे हैं यू नीड टू डिस्क्राइब इट वेरी क्लियरली. आपने इसको वेरी क्लियर, इस स्टेज पर आपने जो सेकंड स्टेज है IDE की, उसमें आपने इसको क्या करना है, आपने इसको जो है क्लियरली जो है वो इसको एक्सप्लेन करना है. यू नीड टू डिस्क्राइब क्लियरली द प्रोडक्ट और सर्विसेज और आइडिया वट एवर इट इज़, जो कुछ भी ये है आपने इसको क्लियरली जो है डिस्क्राइब करना है. इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम आम लफ्ज़ों में इन सिंपल वर्ड्स में बात करें तो यू नीड टू फोकस, यू नीड टू गिव एन एम्फेसिस द सेंट्रल सेलिंग पॉइंट. जो आपका सेंट्रल सेलिंग पॉइंट है आपने उस पर फोकस करना है, दैट यू आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द प्री राइटिंग एनालिसिस. और आपका जो सेंट्रिंग सेलिंग पॉइंट है उसको आपने वो आपको कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज़ योर सेंट्रल सेलिंग पॉइंट. आपका जो सेंट्रल सेलिंग पॉइंट होता है उसको आप ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लेते हैं ड्यूरिंग योर प्री राइटिंग एनालिसिस. जब आप प्री राइटिंग एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उसमें पहले से आप अपने ज़हन में बना लेते हैं कि दैट इज़ योर सेलिंग पॉइंट ऑन विच यू आर गोइंग टू फोकस, जिस पे आप फोकस करने जा रहे हैं. सो सिंपल वर्ड्स में यू नीड टू एम्फसाइज द सेंट्रल सेलिंग पॉइंट. सेलिंग पॉइंट्स कैन बी डेवलप्ड यूजिंग रैशनल. अब वो जो सेलिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो वो सेलिंग पॉइंट्स जो हैं दे कैन बी डेवलप्ड यूजिंग रैशनल टेक्निक्स और यूजिंग रैशनल अपील्स और यूजिंग इमोशनल अपील्स. अभी दोनों को देखते हैं कि इमोशनल अपील्स क्या और रैशनल अपील्स क्या है. रैशनल जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉजिक और रीज़न के साथ. सो रैशनल अपील्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विद रीज़न एंड इंटेलेक्ट. आपकी रीज़न के साथ, आपकी लॉजिक के साथ, आपकी जहन के साथ, आपके इंटेलेक्ट के साथ जो है वो कनेक्ट होती हैं. रीज़न जो रैशनल अपील्स होती हैं, दे ट्रांसलेट सेलिंग पॉइंट्स इनटू द रेफरेंस टू मेकिंग और सेविंग मनी. यानी कि जब आप किसी को जो है वो रैशनल अपील दे रहे होते हैं, किसी प्रोडक्ट की या किसी आइडिया की रैशनल अपील दे रहे हैं, तो आप अपने रीडर को ये बताएंगे हाउ मच मनी यू कैन गेन फ्रॉम दिस आइडिया, हाउ मच मनी यू कैन
गेन फ्रॉम दिस आइडिया एंड हाउ मच, और अगर कोई प्रोडक्ट है तो हाउ मच बेनिफिट यू कैन गेट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, कि आप इस प्रोडक्ट से कितना मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं, या अगर कोई आइडिया तो ये आइडिया आपको कितना बेनिफिट पहुंचा सकता है, कितना मनी मेकिंग आपके लिए साबित हो सकता है. सो दैट यू नीड टू ट्रांसलेट द सेलिंग पॉइंट इनटू द रेफरेंस टू मेकिंग और सेविंग मनी. जिससे अगर आप कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करें तो आप अपने रीडर को ये बताएंगे कि हाउ मैक्सिमम, how it can save your money and how it can benefit you, and how it can increase efficiency or making the best use of resources. In journal, rational appeal is appropriate when a product is expensive, long lasting or important to health, security or financial success. ठीक है जी. दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम ये कहें कि अगर जनरली बात करें तो हम रैशनल अपील उस वक्त देते हैं जब उस वक्त अप्रोप्रिएट होती है, जब आपकी कोई अगर कोई प्रोडक्ट है या कोई आइडिया जो है वो एक्सपेंसिव है, लॉन्ग लास्टिंग है, इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए, सिक्योरिटी के लिए, फाइनेंशियल मैटर्स के लिए, फाइनेंशियल सक्सेस के लिए. उस सूरत में आप जो है यू गो फॉर रैशनल अपील. बट एज फार एज इमोशनल अपील इज़ कंसर्न, ऑन द अदर हैंड इमोशनल अपील्स रिलेट टू द स्टेटस, ईगो एंड सेंशुअल फीलिंग्स. सो अपीलिंग टू इमोशंस इज़ sometime effective when a product or idea is inexpensive, short-lived or non-essential. यानी कि ये दोनों में डिफरेंस है कि आपकी जो रैशनल अपील जो है उस वक्त अप्रोप्रिएट होती है जब आपकी प्रोडक्ट जो होती है वो एक्सपेंसिव होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, इंपॉर्टेंट होती है आपकी हेल्थ के लिए, सिक्योरिटी और फाइनेंशियल इश्यूज़ के लिए सक्सेसफुल होती है. और इमोशनल अपील उस वक्त अप्रोप्रिएट होती है जबकि आपकी प्रोडक्ट जो है वो इनएक्सपेंसिव होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है और ज़रूरत की नहीं होती, नॉन एसेंशियल में आती है. सो मैनी क्लेवर सेल्स मैसेजेस कंबाइन, लेकिन बहुत से जो क्लेवर सेल्स मैसेजेस हैं मार्केटिंग के लोग वो क्या करते हैं, वो इमोशनल अपील और जो है वो रैशनल अपील दोनों स्ट्रैटेजीज़ को कंबाइन कर देते हैं. सो ड्यूअल अपील के दे गो फॉर अ ड्यूअल अपील. सो मैनी क्लेवर सेल्स मैसेजेस एंड मार्केटर्स कंबाइन इमोशनल एंड रैशनल स्ट्रैटेजीज फॉर अ ड्यूअल अपील. अ फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रोडक्ट इज़ नॉट एनफ. According to Americans' greatest salesperson, that no matter how well you know your product, no one is persuaded by cold hard facts. यानी कि आपको सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में या अपने आइडिया के बारे में तमाम उसके प्रॉस एंड कॉन्स का पता होना चाहिए, आपको उसकी तमाम डिटेल पता होनी चाहिए. दैट इज़ नॉट एनफ. एक अमेरिकन ग्रेटेस्ट सेल्स पर्सन है, उसका ख्याल ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि यू नो वेरी वेल अबाउट योर प्रोडक्ट एंड इट्स नॉट एनफ. इन इफ़ यू वांट टू परसुएड द पीपल, अगर आप लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं तो यू नीड टू डू मोर दैन दिस. आपको इससे ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा क्योंकि नो वन इज़ परसुएटेड बाय कोल्ड हार्ड फैक्ट्स. आप सिर्फ कोल्ड हार्ड फैक्ट्स बताकर लोगों को परसुएड नहीं कर सकते. इन द एंड पीपल बाय बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट बेनिफिट. सो यू ऑल्सो नीड टू टेल द बेनिफिट्स के व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट. आपको लोगों को जो है वो उस प्रोडक्ट के फ़ायदा बताना पड़ता है, बेनिफिट बताना पड़ता है, तब लोग जो है उस प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं. इस बात से नहीं प्रोडक्ट को ख़रीदते कि हाउ मच यू नो और हाउ वेल यू नो योर प्रोडक्ट, कि आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में कितना जानते हैं. वही बात है जो भी मैंने आपको बिगनिंग में बताई कि जब हमने बिल्डिंग इंटरेस्ट डेवलप करना है तो उसमें जो आपका सेलिंग पॉइंट है वो ये होना चाहिए कि उसमें आपने ये देखना है कि सेलिंग पॉइंट्स जो है वो अब आप डेवलप कर सकते हैं रैशनल और इमोशनल अपील्स में. लेकिन उसमें जो है जब आप रैशनल अपील की बात करते हैं तो उसमें आपने जो है उसमें ये बताना है आपने कि हाउ बेनिफिटेड दिस प्रोडक्ट और दिस आइडिया इज़ फॉर द कस्टमर, फॉर द रीडर, एंड हाउ मच मनी दे कैन सेव by using this and how it can increase their efficiency. So the people buy things or buy the product because of their benefits. लोग जो है उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं उनके बेनिफिट्स की वजह से. So your job is to translate those cold facts into warm feelings and the reader benefits. अपने वो जो हार्ड फैक्ट्स हैं, कोल्ड हार्ड फैक्ट्स हैं, यू नीड टू चेंज देम इनटू द वार्म फीलिंग्स एंड यू नीड टू टेल द रीडर the benefits के what sort of a benefit they are going to get after purchasing that product or after following this idea. कि आपने उनको ये बताना है कि उनको क्या इससे फ़ायदा होगा उस प्रोडक्ट से. जैसे हमने पढ़ा था ना कि सबसे पहले जो है रीडर के माइंड में जो है वो ये सवाल आता है कस्टमर के सामने कि व्हाट इज़ द बेनिफिट इन इट फॉर मी, कि मेरे लिए इसमें क्या फ़ायदा वाली बात है. The third thing is that building desire. Now you need to create a desire after giving the reason और after उसमें आपने जो है वो selling point में जो है वो आपने देखना है कि आपने either you are using a rational approach और appeal और emotional appeal. और वो मैंने आपको बता दिया आपने emotional appeal कहाँ यूज़ करनी है और rational कहाँ यूज़ करनी है. उसके बाद आते हैं third thing is that AIDA की जो third technique है that is building desire.
So now you need to create a desire in your reader. So marketing specialists use a number of techniques to overcome resistance and build desire. कि जो मार्केटिंग के लोग होते हैं और जो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट होते हैं वो बहुत ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि जो है वो डिज़ायर जो है वो अपने कस्टमर में जो है वो डिज़ायर क्रिएट कर सकें उसमें टू गो फॉर दैट प्रोडक्ट. सो व्हेन प्राइस इज़ एन ऑब्स्टेकल, जब आपके पास सपोज कर लेते हैं कि अगर प्राइस का इशू आ रहा है, प्राइस ऑब्स्टेकल है कि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है और उस हाई प्राइस की वजह से कस्टमर जो है वो उस प्रोडक्ट को नहीं ख़रीद रहा, तो फिर आपने यू कैन कंसिडर दीज सजेशंस. तो आप इन सजेशंस को जो है वो कंसिडर करके जो है वो यू कैन क्रिएट अ डिज़ायर इन योर कस्टमर. नंबर 1, डिले मैंशनिंग प्राइस. आप प्राइस को बाद में जो है वो मेंशन करें अनटिल आफ्टर यू हैव रिलेटेड अ डिज़ायर फॉर द प्रोडक्ट. जब आप डिज़ायर क्रिएट कर दें कस्टमर के अंदर प्रोडक्ट के बारे में, उसके बाद आप उसकी प्राइस जो है वो मेंशन करें. शो द प्राइस इन अ स्मॉल यूनिट. सेकंड थिंग इज़ दैट यू नीड टू शो द प्राइस इन अ स्मॉल यूनिट. आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी प्रोडक्ट आप लेने जाते हैं उसकी अक्सर आप ये टेक्निक है कि उसकी प्राइस किस तरह से है, जो स्मॉल यूनिट्स में. मसलन ये प्राइस जो है अगर कोई चीज़ 1000 की है तो उन्होंने कंपनी ने उसकी प्राइस रखी हुई 999, तो वो 999 का फिगर जो है वो है तो 1000 ही, ₹1 कम है, लेकिन वो आपको लगता है कि नहीं यार ये 1000 से तो कम ही है. इसी तरह 499, तो आपको लगता है नहीं ये तो 400 से, ये 500 से तो कम ही है. तो मतलब ये लो आपने डिजिट में स्मॉल यूनिट में शो द प्राइस इन अ स्मॉल यूनिट. थर्ड थिंग इज़ दैट डेमोन्स्ट्रेट हाउ द रीडर सेव्स द मनी. फिर आपने बताना है, आपने इसको ये डेमोन्स्ट्रेट करना है इन ऑर्डर टू क्रिएट द डिज़ायर दैट हाउ दे कैन सेव द मनी, कि वो अपने पैसे जो है वो किस तरह से बचा सकते हैं. कंपेयर योर प्राइस विद दोज ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स. अपने प्राइस को जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ जो है वो कंपेयर कर सकते हैं. एंड इन एडिशन यू नीड टू एंटिसिपेट ऑब्जेक्शंस एंड क्वेश्चन एंड द रिसीवर में हैव. और इसके अलावा एडिशनली आप जो है जब आप वाइल यू आर क्रिएटिंग अ डिज़ायर इन योर रीडर इन योर कस्टमर, सो उसके लिए यू नीड टू एंटिसिपेट. आप पहले से जो है वो एंटिसिपेट कर लेते हैं. अगर कोई ऑब्जेक्शंस उसको हो सकती हैं, कोई क्यूरीज हो सकती हैं, कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं रिसीवर की साइड से, तो यू नीड टू कंसिडर इट बिफोर टाइम. सो व्हेन पॉसिबल ट्रांसलेट दीज ऑब्जेक्शंस इनटू सेलिंग पॉइंट्स. और अगर पॉसिबल है तो जो इससे पहले वाला स्टेप है बिल्डिंग डिज़ायर से पहले जो हमने देखा था कि यू नीड टू बिल्ड अ इंटरेस्ट. तो जब आप इंटरेस्ट बिल्ड करें तो आप उसी वक्त अपने तमाम तर, अगर आपको लगता है कि रिसीवर के माइंड में कोई क्वेश्चन हो सकता है, कोई क्यूरी हो सकती है, कोई ऑब्जेक्शन हो सकती है, तो आप उसको वहीं पर जो है उसको वाइल यू आर डेवलपिंग एन इंटरेस्ट इन अ रीडर, तो आप वहीं पर उसको जो है वो डिस्कस कर लें. So you can, when possible, translate these objections into the selling points. You can use other techniques to overcome resistance and prove the credibility of the product. आप और भी बहुत सी चीज़ों को यूज़ करके हुए, अभी जो ऊपर हमने टेक्निक्स देखी वो तो ये थी कि अगर आपकी प्राइस जो है वो एक हिंड्रेंस है और रुकावट है कि आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदा, तो उसमें आप ये वाली टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं. वो मैंने आपको 4 बातें बताई हैं, ठीक है जी. और अब यहाँ पर ये है कि यू कैन ऑल्सो प्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड यू कैन यूज़ अदर टेक्निक्स टू ओवरकम द रेजिस्टेंस. किस चीज़ की रेजिस्टेंस, कि जब थोड़ा सा रिलेक्टेंट होता है, उसका डिज़ायर क्रिएट हो गई उसके अंदर, कस्टमर के अंदर. अब नेक्स्ट थर्ड स्टेजेस ये है कि सम हाउ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डिज़ायर क्रिएट होने के बाद जो है वो फौरी तौर पे इमीडिएटली वो ख़रीद भी लेगा प्रोडक्ट या आपके आइडिया को फॉलो भी कर लेगा. समटाइम्स ये होता है कि उसके अंदर फिर भी रिलेक्टेंट होता है वो. तो उस रेजिस्टेंस को और रिलेक्टेंसी को ख़त्म करने के लिए जो है वो आप क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं. नंबर 1, टेस्टिमोनल्स. नेम ऑफ सेटिस्फाइड यूज़र्स. आप टेस्टिमोनल्स यूज़ कर सकते हैं. आप जो सेटिस्फाइड यूज़र्स हैं उनका नाम बता सकते हैं. मनी बैक गारंटी दे सकते हैं और वारंटी दे सकते हैं प्रोडक्ट की. फ्री ट्रायल और सैम्पल प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो उनकी जो रेजिस्टेंस है और रिलेक्टेंस उसको ओवरकम किया जा सके. अगर वो थोड़े से रेजिस्टेंस है, डिज़ायर तो क्रिएट होगी, लेकिन अब वो अगर थोड़ा सा कस्टमर रेजिस्टेंस है कि मुझे पता नहीं ख़रीदनी चाहिए नहीं ख़रीदनी चाहिए, तो उसके लिए जो है यू कैन गो फॉर दीज थिंग्स, ठीक है जी. तो आप जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं. उसमें आप फ्री ट्रायल और सैम्पल्स दे सकते हैं, परफॉर्मेंस दे सकते हैं, कोई परफॉर्मेंस टेस्ट दे सकते हैं, पोल्स और अवार्ड्स वगैरह जो है, इन सब टेक्निक को यूज़ करके यू कैन ओवरकम द रेजिस्टेंस एंड रिलेक्टेंस इफ़ इट आफ्टर क्रिएटिंग द डिज़ायर और आफ्टर building an interest or creating after building an interest in the customer. It is on the third stage okay, when the interest has already developed in the customer and now you have already created or build up a desire for your product or your idea, लेकिन उसमें somehow कहीं ना कहीं फिर भी जो है वो रह जाती है, रिलेक्टेंट होता है कस्टमर थोड़ा सा. तो जब कस्टमर थोड़ा सा जो है वो रिलेक्टेंट होता है तो उसमें जो है फिर आपने क्या करना है, उसमें जो है वो
फिर आपने उसको क्या करना है, उसमें फिर आपने उसमें इन टेक्निक्स को फॉलो करके आप उस रेजिस्टेंस को और रिलक्टेंसेस को कम कर सकते हैं. द लास्ट थिंग इज दैट एक्शन, मोटिवेशन. द फोर्थ थिंग इज द फाइनल स्टेप इज दैट मोटिवेट फॉर एक्शन, मोटिवेशन, एक्शन. एट द कंक्लूजन ऑल द एफर्ट्स पुट इनटू अ सेल्स मैसेज गोज टू वेस्ट. आपकी तमाम तरह एफर्ट्स जो आपने सेल्स मैसेज के लिए पुट की थी वो क्या थी, AID तक, यानी कि अटेंशन आपने जो है आपने यू हैव ऑलरेडी टेकन द अटेंशन, और उसके बाद जो है आपने जो गेन अटेंशन भी कर लिया, आपने बिल्ड भी इंटरेस्ट भी बिल्डअप कर लिया, और उसके बाद डिज़ायर को भी इलिसिट कर दिया, क्रिएट कर दिया. आपकी तमाम तरह एफर्ट जो हैं सेल्स मैसेज में दे विल वेस्ट, वो वेस्ट हो जाएंगी इफ़ द रीडर फेल्स टू एक्ट. अगर रीडर जो है उस पर एक्ट ही नहीं करेगा. टू मेक इट ईजी फॉर द रीडर टू एक्ट यू कैन प्रोवाइड अ रिप्लाई कार्ड, स्टैम्प्ड एंड प्री एड्रेस इन्वेलप. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रीडर जो है वो इमीडिएटली एक्ट करे तो आप उसको क्या कर सकते हैं, यू कैन प्रोवाइड अ रिप्लाई कार्ड, स्टैम्प्ड and pre-address envelope, our toll-free telephone number, as reader often need an extra push including additional motivation. ठीक है जी, तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करके जो है आप उसको क्रिएट कर सकते हैं. रेयान